بجلی کنیکشن کے لیے نئی کڑی شرائط لگائی گئی ہیں اور تمام کنیکشنز کے حصول کے لیے ٹیسٹ رپورٹ کی آن لائن تصدیق لازم قرار دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا گیا ہے گھریلو، کمرشل، انڈسٹریل اور ٹیوب ویلز اور دیگر کنیکشن پر ٹیسٹ رپورٹ کی تصدیق ہوگی۔ ٹیسٹ رپورٹ کی تصدیق متعلقہ الیکٹرک انسپیکٹر کی جانب سے کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جان لیں گے، شاہر ندیم سپرا ہمارے ساتھ موجود ہے، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے بجلی کے کنیکشن کے حصول کے لیے کڑی شرائط عائد کر دی گئی ہیں، اور جو نئی شرط عائد کی گئی ہے کہ ٹیسٹ رپورٹ کی ویریفیکیشن لازمی قرار دی گئی ہے، اور یہ ٹیسٹ رپورٹ ویریفیکیشن آن لائن ہی ہو سکے گی۔ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ صارف جب اپنے کنیکشن کے حصول کے لیے دستاویزات جمع کروائے گا تو اس کے ساتھ الیکٹرک انسپیکٹر سے جاری ہونے والی ٹیسٹ رپورٹ کو بھی لفظ کیا جائے گا، اور دو مقامات پر دستاویزات کی تصدیق کی جائے گی۔ ایک لیسکو جو قومی شناختی کارڈ اور پراپرٹی پروف جو ہے اس کی تصدیق کرے گی، دوسری جانب الیکٹرک انسپیکٹر کی جانب سے آن لائن ٹیسٹ رپورٹ کی تصدیق کی جائے گی۔ اگر دونوں مقامات پر دستاویزات کی تصدیق ہوتی ہے تو اس کے بعد ڈیمانڈ نوٹس کا اجرا کیا جائے گا، اور ڈیمانڈ نوٹس جمع ہونے کی صورت میں صارفین کو کنیکشن دیا جا سکے گا۔ واضح کر دوں کہ اس سے قبل جب ڈیمانڈ نوٹس جاری ہو جاتا تھا تو اس کے بعد بینک میں جمع کروانے کے لیے ٹیسٹ رپورٹ لازمی قرار دی گئی تھی، اور ڈیمانڈ نوٹس کے ساتھ لگا کر بینک میں ڈیمانڈ نوٹس جمع ہوتا تھا، اور بینک کے ذریعے وہ ٹیسٹ رپورٹ متعلقہ دفاتر کو ارسال کر دی جاتی تھی، جس کے بعد میٹرز کی تنصیب ہوتی تھی۔ لیکن اب یہ طریقہ کار تبدیل کیا گیا ہے کہ ٹیسٹ رپورٹ کی ویریفیکیشن بھی آن لائن ہوگی، اور آن لائن جب تک الیکٹرک انسپیکٹر اس کی ویریفیکیشن نہیں کرے گا تب تک لیسکو میں ڈیمانڈ نوٹس کا اجرا نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کو باضابطہ طور پر نافذ العمل کر دیا گیا ہے، اور لیسکو کے جتنے بھی صارفین ہوں گے اگر وہ آئندہ اپنا کنیکشن لینا چاہتے ہیں تو ان کو دیگر دستاویزات کے ساتھ الیکٹرک انسپیکٹر کی جو ٹیسٹ رپورٹ ہے وہ بھی ساتھ لگانا ہوگی، اور اس کی ویریفیکیشن کے بعد ڈیمانڈ نوٹس دیا جائے گا، اور ڈیمانڈ نوٹس جمع ہونے کی صورت میں کنیکشن جو ہے وہ دیا جا سکے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہر ندیم سپرا آپ کا۔ اور ناظرین، تگڑی سفارشیں یا بھاری نذرانے، ایل ڈی آفس سے وزیر اعلیٰ کے گھر تک غیر قانونی کمرشل تعمیرات۔ ایل ڈی شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے متعدد غیر قانونی کمرشل تعمیرات بنوا دی، ڈی جی ایل ڈی کی پالیسی کی دھجیاں بکھیر دی ہے۔ اس حوالے سے جانیں گے دور نیاب ہمارے ساتھ موجود ہے، بتائیے گا۔ جی بالکل، ایل ڈی شعبہ ٹاؤن پلاننگ کی جانب سے اب وی وی آئی پی روٹس اور میجر روٹس پر جو ٹاؤن پلاننگ کی خلاف ورزی ہے وہ بڑی عام ہوتی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے اس تمام روٹس پر غیر قانونی تعمیرات، بلڈنگ کو غیر قانونی طور پر ریزیڈینشل سے کمرشل تبدیل کرانا، بڑے بڑے خالی پلاٹوں پہ عارضی اسٹرکچر لگا کے کیفے یا ہوٹلس کھلوانا، یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ جبکہ انسٹرکشن تو یہ ہے کہ خیابان جناح، خیابان فردوسی، پائن ایونیو، اڈا پلاٹ، ڈرائیو ان تک یہ وی وی آئی پی روٹ ڈکلیئر ہے، اور اس پہ حکومت پنجاب کی جانب سے، وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھی خاص احکامات ہیں کہ کسی صورت بھی غیر قانونی تعمیرات، ویسے تو شہر بھر میں ان کے احکامات ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو روٹس ہیں یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ڈی جی ایل ڈی کے علیحدہ انسٹرکشنز ہیں کہ فیوچر روڈز ہیں، کل کو یہاں پہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، اس نے آپریشنل ہونا ہے، بہت ساری چیزیں اور بننی ہے، تو یہاں پہ مشروم گروتھ نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں جو پلاٹ جس چیز کے لیے مختص ہے اسی چیز کے اندر رہتے ہوئے اجازت ملنی چاہیے۔ اب اس حوالے سے ڈی جی ایل ڈی نے کہا کہ تمام بلڈنگ کے آگے اپروول فلیکسوں پہ لگائی جائے۔ ایل ڈی نے فلیکسیں تو لگوا دی لیکن ان کو خالی چھوڑا گیا ہے، اس کے اوپر بلڈنگ پلان کا اپروول نمبر اور ڈیٹ نہیں لکھی گئی، اور یہ بھی ایک آنکھوں میں دھول جھونکنے کے حکام کے مترادف ہے، لیکن جس میں کوئی ٹھیک ہے دور نیاب، بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ خزانہ نے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کو 30 کروڑ جاری کر دیے ہیں۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو 6 ارب روپے جاری کیے گئے۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اساتذہ کی تنخواہوں کا بجٹ جاری ہوا ہے۔ ڈی جی پی آر کو اشتہارات اور میڈیا مہم کے لیے 1 ارب روپے جاری کیے گئے۔ ڈی جی پی آر اس گرانٹ سے اشتہارات کے بل بھی ادا کرے گا۔ تو ڈی جی پی آر کو اشتہارات اور میڈیا مہم کے لیے 1 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اساتذہ کی تنخواہوں کا بجٹ جاری ہو گیا۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو 6 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کو 30 کروڑ جاری کر دیا اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو 6 ارب روپے جاری۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اساتذہ کی تنخواہوں کا بجٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈی جی پی آر کو اشتہارات اور میڈیا مہم کے لیے 1 ارب روپے جاری کیے گئے۔
DGPR इस ग्रांट से इश्तेहारात के बिल भी अदा करेगा। आपको बताएं कि DGPR को इस ग्रांट से इश्तेहारात के बिल भी अदा करेगा। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुबैना मुकाबले में तीफी बट की हलाकत का मामला CCD रहीम या खान की मुद्दई में दर्ज होने वाले दूसरे मुकदमे का मतन सामने आ गया। तीफी बट को छोड़ने वाले मुल्जिमान की फायरिंग से रहीम या खान पुलिस का एक कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। ये दूसरा मुकदमा तीफी बट को छुड़ाने के बाद CCD रहीम या खान के साथ मुकाबले का हालात बयान कर रहा है। ताज चौक की तरफ से आने वाली 2 कोरोला गाड़ियों का यूनिक सिटी के करीब CCD रहीम या खान से आमना सामना हुआ है। FIR में यह बताया गया CCD रहीम या खान ने तीफी बट के कब्जे से एक क्लाशन कोफ भी बरामद किया। 2 कारों में सवार मुल्जिमान अपने जख्मी साथी को छोड़कर फरार हो गए। तीफी बट की मुबैना मुकाबले का पहले मुकदमा DSP CCD मॉडल टाउन लाहौर की मुद्दई में दर्ज हुआ। पहले मुकदमे में तीफी बट के साथियों के CCD मॉडल टाउन पर हमले और तीफी बट को छुड़ाने पर दर्ज किया गया है। तफसीलात जान लेंगे। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद है। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये रहीमिया खान में CCD मॉडल टाउन लाहौर का जो मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ था जिसमें तीफी बट हलाक हुआ था, उस वाक़े की एक दूसरी FIR भी रहीमिया खान में दर्ज की गई है और ये FIR जो CCD रहीमिया खान है उनकी मुद्दत में दर्ज की गई है, जिसमें न सिर्फ गोगी भट्ट की हलाकत का जिक्र किया गया है उसके अपने ही साथियों से, बल्कि गोगी भट्ट की तहवील से एक क्लैशन कोफ भी बरामद की गई है। उस FIR के मतन के मुताबिक जो CCD मॉडल टाउन की हिरासत है, जब वो तीफी बट के मुल्ज़मान तीफी बट के साथी अपने साथी को फरार करवा के जा रहे थे तो उनका मुकाबला CCD रहीमिया खान से हुआ और सेम वहाँ पर भी फायरिंग का तबादला हुआ और एक जो कांस्टेबल था CCD रहीमिया खान था वो इनकी फायरिंग से जख्मी हुआ। जब ये फायरिंग का सिलसिला थमा तो पता चला कि एक मुल्ज़म जो उन दोनों कारों में सवार था, जिसकी बाद में शनाख्त तीफी बट के नाम से हुई थी, वो शदीद जख्मी था, जिसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए जब ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका। बालाज कत्ल केस गोगी भट्ट की दरख्वास्त से जमानत खारिज हो गई है। एडिशनल सेशन जज सैयद नजफ हैदर कासमी ने दरख्वास्त से जमानत खारिज की है। अदालत ने गोगी भट्ट की दरख्वास्त से जमानत पेश न होने पर खारिज की है। डिटेल्स जानेंगे, शाहीन अतीक से बताइएगा। जी, एडिशनल सेशन जज सैयद नजफ हैदर काज़मी ने अकील रशीद उर्फ गोगी भट्ट की अदम पैरवी की बिना के ऊपर दरख्वास्त ज़मानत जो है वो खारिज कर दी है। आज अदालत ने CTD से रिकॉर्ड जो है वो तलब किया था और रिकॉर्ड जो है वो CTD जो है वो अदालत में लेकर पेश हुई, लेकिन अकील रशीद उर्फ गोगी भट्ट जो है वो पेश नहीं हुए। अदालत ने पहली आवाज़ जो है वो सुबह 8 बजे दी, उसके बाद दूसरी आवाज़ जो है वो 8:30 बजे हुई है, उसके बाद फिर 9 बजे दी गई और 10 बजे आखिरी आवाज़ दी गई, लेकिन वो पेश नहीं हुए और जिसकी वजह से अदालत ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो खारिज कर दी। अकील रशीद उर्फ गोगी भट्ट ने यहाँ पर 16/8/2025 को अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी और अदालत में वो पेश होते रहे। कानूनी पेचीदगी की वजह से तारीख पड़ रही। अदालत ने आखिरी मौका जो है वो दिया था कि आज हर सूरत के ऊपर बहस होगी। CTD रिकॉर्ड लेकर जो है वो पेश हो गई थी, लेकिन अकील रशीद उर्फ गोगी भट्ट जो है वो पेश नहीं हुए, जिस पर उनकी दरख्वास्त ज़मानत को जो है वो खारिज कर दिया गया। इनके ख़िलाफ़ अमीर बलाज को कत्ल करने का जो है वो इल्ज़ाम था। इस पर ये इनको अदालत ने पहले मफरूर करार दे रखा था, उसके बाद ये वहाँ से पाकिस्तान आए और आकर ये अदालत में पेश हो गए। उसके बाद इनकी दरख्वास्त ज़मानत जो वो चल रही थी। अब अदालत के अंदर जो है इन्होंने अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर की, लेकिन आज वो पेश ना हुए, जिसकी वजह से उनकी दरख्वास्त ज़मानत को खारिज कर दिया गया है। ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। कार्बन कंट्रोल और ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए CTO की अहम तजवीज़, रोज़ाना 8 से 10 लाख गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें शहर में दाखिल होती हैं। शहर से 4 से 5 लाख गाड़ियाँ बाहर जाती हैं। CTO लाहौर के मुताबिक ये कहा गया है कि बड़े पैमाने पर गाड़ियों की आमदोरफ्त से स्मोक और ट्रैफिक जैम और हादसात में इजाफा होता है। मज़ीद क्या कहा गया उनकी जानिब से, अली साहिल से जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में पंजाब भर से बड़े पैमाने पर रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियां जो हैं शहर में दाखिल होती हैं और लोग अपने रोज़गार के लिए, यहाँ पर शॉपिंग के लिए और विज़िट्स के लिए शहर के अंदर दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक मसाइल का सामना रहता है। इसके साथ साथ हादसात सामने आते हैं और स्मोक फैलाने का बड़ा सबब यही गाड़ियां बनती हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए CTO लाहौर डॉक्टर अदर वहीद की जानब से
कमिश्नर लाहौर को मरासला भिजवाया गया है कि इन तमाम मसाइल पर काबू पाने के लिए 2 मरहलों में शहर को एक तो करीबी जितने भी अजला हैं उनके साथ ई बस सर्विस के ज़रिए मुंसलिक किया जाए, जबकि एक तवील मुद्दती जो प्रोजेक्ट है उसमें इंटर सिटी ट्रेन सर्विस शुरू की जाए ताकि जो रोज़ाना की बुनियाद पर 8 से 10 लाख के करीब गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें शहर के अंदर दाखिल होती हैं उन पर काबू पाया जा सके। और इसी तरह जो शहरी हैं उनका एक तो अखराजात में कमी होगी, दूसरा हादसात में कमी होगी और इसके साथ साथ जो स्मोक है उस पर बड़े पैमाने पर काबू पाया जा सकेगा। चूँकि जब इतने बड़े पैमाने पर शहर के अंदर गाड़ियां दाखिल होती हैं तो शहर के जो दाखिली व खारजी रास्ते हैं वहाँ पर फैटल एक्सीडेंट्स सामने आते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए CTO लाहौर डॉक्टर तरवहीद की जानब से ये तजवीज़ दी गई है। अगर इस पर अमल दरामद होता है तो पहले मरहले में लाहौर से कसूर, शेखपुरा और ननकाना साहब में ई बस सर्विस शुरू की जाए। इसी तरह दूसरे मरहले में इंटर सिटी ट्रेन जो है जितने भी मुल्हक्का अजला हैं वहाँ तक शुरू की जाए ताकि एक तो शहरियों का जो वक्त है वो बचेगा, दूसरा अखराजात में कमी होगी, तीसरा जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उस पर काबू। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। स्मगलिंग में मुलविस ट्रांसपोर्टर्स के गिर शिकंजा सख्त कर दिया गया है। पहली बार महकमे खुराक ने डिजिटल धोखाधड़ी बेनकाब कर दी। जाली ई परमिट से हजारों मन गंदम को स्मगल करने की कोशिश नाकाम की गई। ड्राइवर्स गिरफ्तार किए गए, मुकदमात दर्ज किए गए और 11 गाड़ियां भी तहवील में ले ली गई हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे कलीम अख्तर से। कलीम बताइएगा। जी बिल्कुल, ये डिजिटल धोखाधड़ी से जो गंदम है उसकी स्मगलिंग की जा रही थी, जो कि अब महकमे खुराक की जानिब से ये पंजाब की तारीख में पहली दफा जो है इस डिजिटल धोखाधड़ी को बेनकाब किया गया है, जिसके पेश नजर कार्रवाई करते हुए ड्राइवर के गिरफ्तार किए गए हैं। मुकदमा दर्ज करके मुजरिम तौर पर मुख्तलिफ जगहों से 11 के करीब जो गाड़ियां हैं वो भी तहवील में ले ली गई हैं। इसके ऊपर DG फूड अमजद हफीज की सरबराही में कहा गया है कि जो वेब पोर्टल है उस पर काम करने वाला जो गैंग है उनको 48 घंटों में बेनकाब किया गया है, जबकि डिजिटल जासूसी से मुतअल्लिक़ जो प्लॉट न्यूज़ के वो मुलव्वस थी, जबकि उन तमाम को शोकाज नोटिस भी कर दिए गए हैं। जबकि जाली जो ई परमिट से हजारों मन गंदम को स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही थी उसको भी नाकाम बना दिया गया है। जबकि महकमे खुराक ने ये भी कहा है कि सरकारी दस्तावेजात भी जालसाजी और इसके अलावा जो धोखाधड़ी है इसकी कोई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि जाली ई परमिट के जरिए स्मगलिंग में मुलव्वस ट्रांसपोर्टर्स के गिर्द जो शिकंजा है वो मज़ीद सख्त किया जा रहा है और उन तमाम को बेनकाब भी किया जाएगा। जी आज़म के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाने के दावे की समा। एडिशनल सेशन जज यलमास गनी ने केस की समा की है। मज़ीद जान लेंगे शाहीन अतीक से। सेशन जज यलमास गनी ने बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत जो है वो 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत में शहबाज शरीफ की तरफ से गवाह पेश किए जाने थे, लेकिन अदालत में दोनों फरीकैन के जो वकला थे वो पेश हुए और उन्होंने अदालत से मोहलत जो है वो मांगी है कि हमें मोहलत दी जाए, आइंदा गवाह भी पेश कर दिए जाएंगे, जिस पर अदालत ने कार्रवाई जो है वो 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। इस केस के अंदर शहबाज शरीफ पर जो बानी PTI के वकील थे मोहम्मद हुसैन चोटिया, उन्होंने अपनी इजरा जो है वो मुकम्मल कर ली, जिसके बाद शहबाज शरीफ की तरफ से गवाह अदालत में पेश किए जाने थे, लेकिन आज गवाह अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर कार्रवाई ना हो सकी। जी बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी जंग। पीपल्स पार्टी का पंजाब असम्बली के इजलास से वॉकआउट का फैसला। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अरकान आज नून लीग से मुतालिक नुक्ता नज़र ऐवान में पेश करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं हसन अली से। हसन बताइएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज ऐवान में अरकान जो है वो मौजूद तो होंगे, लेकिन ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि आज के इजलास में भी का जो है वो वॉकआउट किया जाएगा। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे रुकन पंजाब असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ अली चांग साहब जो है मौजूद हैं। चांग भाई ये बताइएगा कि आज के इजलास में आप लोग शिरकत करेंगे, आपकी तकरीर भी होगी, तो क्या आज के इजलास से वॉकआउट किया जाएगा? देखें, अभी हम मीटिंग करते हैं, पार्लिमानी लीडर की जो हिदायत होगी और वो मुल्क से बाहर हैं, तो अगर ज़ाहिर वो सीनियर है हमसे और जो हिदायत होगी हम उस पर अमल करेंगे, मगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी कायम हैं, ताकि क्योंकि हमारी लीडर के लिए भी बातें की गई हैं, हमारी जमात के लिए भी बातें की गई हैं, उसी सूबे से की गई हैं, उसी चीफ मिनिस्टर साहिबा से की गई हैं जिसको हमने वोट दिया है। अभी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होगी, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि हमने वॉकआउट करना है या हमने असम्बली सेशन का हिस्सा बनना है।
थैंक यू जी। जैसे कि मेरे साथ मुमताज़ अली चांद साहब जो है मौजूद थे, उनका ये कहना था कि अभी जो है वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया जाएगा, जिसके बाद जो है फैसला किया जाएगा कि ठीक है हसन, बहुत शुक्रिया आपका।